नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे बजट 2026-27 में स्वास्थ्य सेवाओं की प्राथमिकता की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में देश के स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। कैंसर और डायबिटीज से संबंधित दवाओं को सस्ता करने का ऐलान किया है। वहीं स्वास्थ्य संबंधी दीर्घकालिक योजनाओं का भी प्रावधान इस बजट में किया है। स्वास्थ्य सेक्टर पर क्या असर होगा इन योजनाओं का, इन घोषणाओं का, और बजट में की गई घोषणाओं का लोगों को किस तरह से लाभ मिलेगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। सुनीला गर्ग जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो अध्यक्ष हैं कार्यक्रम सलाहकार समिति NIHFW से। बहुत बहुत स्वागत है सुनीला जी आपका संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार मदन जेरा जी से। मदन जी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। इस मुद्दे पर चर्चा करें क्योंकि मुद्दा बजट का है और स्वास्थ्य सेवाओं का है। सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य ऊपरी पायदान पर रहा है। आइए सुनते हैं निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट में क्या कहा। Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training, and awareness for traditional medicine. केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। लगभग 10% की बढ़ोतरी बजट में की गई है। जाहिर तौर पे सरकार का जो उद्देश्य है वो बेहतर चिकित्सा सुविधाएं आम आदमी तक पहुंचाने का है, सस्ती दवाएं पहुंचाने का है
और कैंसर और डायबिटीज़ दो ऐसी बीमारी हैं जो इस समय दुनिया के लिए एक चुनौती बनी हुई हैं। भारत में भी बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित हैं। जाहिर तौर पे सरकार ने एक दीर्घकालिक बजट स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखकर बनाया है, लेकिन क्या मायने हैं इस बजट के, क्या संदेश है इस बजट का, किस तरह से आम आदमी को फायदा होगा? मदन जेड़ा जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा इस मुद्दे की, क्योंकि बजट में खासतौर से जब भी स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र होता है तो आम आदमी दो चीज़ देखता है, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो स्वास्थ्य में सरकार ने किस तरह का प्रावधान किए हैं और इनसे क्या असर होगा हमारे स्वास्थ्य सेक्टर पे, हेल्थ सेक्टर पर, स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं पर? देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो 2-3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि एक निमहंस इंस्टीट्यूट है हमारे बेंगलुरु में, और उस साउथ का बेहतरीन मेंटल हेल्थ का इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। अगर हम उसकी तुलना करें, जैसे दिल्ली का एम्स है एक जनरल बीमारियों के लिए, तो मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में जो रिसर्च भी करता है और ट्रीटमेंट भी करता है वो निमहंस बेंगलुरु में है। तो वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि वैसा ही एक इंस्टीट्यूट नॉर्थ इंडिया में खोला जाएगा। अभी जगह कहाँ होगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें तो दिल्ली से ऊपर जाके, चाहे वो यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, कोई ऐसा मेंटल हेल्थ का बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पर ट्रीटमेंट भी होता हो, रिसर्च भी होता हो और पॉलिसीज़ भी बनती हों। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी घोषणा तो यही है कि निमहंस उत्तर भारत में खुलेगा, एक बहुत बड़ी बात है। और मेंटल हेल्थ की मेंटल जो बीमारियाँ हैं, डिसऑर्डर हैं, बढ़ रहे हैं। अगर हम 5 साल पहले तक की बात करें तो ये कहा जाता था कि 4 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर की चपेट में है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 7 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर की चपेट में है। सॉरी, पहले 7 में से 1 कहा जाता है, अब 4 में से 1 कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसी के साथ ये भी कहा गया कि जो रांची और तेजपुर के क्षेत्रीय मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट हैं उनको भी अपग्रेड किया जाए। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि जो एलाइड हेल्थ केयर की बात कही गई है, आज हमारे देश में जो डॉक्टरों की सीटें हैं वो 1,30,000 तक पहुंच गई हैं, और ये सफिशिएंट है, अच्छी संख्या में है और आगे भी बढ़ने की इसमें संभावना है। लेकिन जो एलाइड हेल्थ केयर होता है, जो डॉक्टर को सपोर्टिंग स्टाफ होता है, जो टेक्नीशियन होता है, या जो और दूसरी तो डॉक्टर की तैयारी में मदद करता है, उसकी बड़ी शॉर्टेज है। तो जितने डॉक्टर हैं कम से कम उसका 10 गुना होना चाहिए, लेकिन हमारे पास मुश्किल से 5-6 लाख देश में तैयार होते हैं। इसलिए जो दूसरा फोकस दिया गया है कि एलाइड हेल्थ केयर की जो संख्या बढ़ाने की बात कही है, मुझे लगता है कि ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसका भी काफ़ी असर पड़ेगा। और जहाँ तक दवाइयों की बात है, कैंसर या रेयर डिजीज़ की दवाइयों की बात है, रेयर डिजीज़, ऑटो इम्यून डिजीज़ बढ़ रही हैं, और कैंसर तो सब जानते हैं कि कैंसर के मामले भी बढ़े हैं। अभी 12 लाख सालाना आते हैं और 2030 तक जो प्रिडिक्शन है कि 20 लाख मामले कैंसर के हर साल आएंगे। अब कैंसर की दवाओं में यह है कि जो हमारे देश में वैसे तो जेनरिक दवाएं हैं, काफ़ी सस्ती हैं, लेकिन जो कैंसर की दवाएं हैं, जो नई दवाएं हैं, ये पेटेंटेड ड्रग होती हैं, तो इनकी कीमत पहले ही बहुत ज़्यादा होती है और भारत में ये बन भी नहीं रही है। बहुत सारी दवाएं इसमें बनती नहीं है। जब इनको इंपोर्ट किया जाता है तो उस पर बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगती है। तो ऐसे में ड्यूटी पर राहत देकर, तो मुझे लगता है कि ये एक जो कैंसर के पेशेंट है या उनके जो परिवार के लोग हैं, क्योंकि जब कैंसर का इलाज होता है तो पूरा परिवार तबाह हो जाता है, तो उनको एक राहत देने की बड़ी कोशिश की गई है। 3 बड़ी बातें मुझे इसमें नजर आती हैं। जाहिर तौर पे कई इस पहलू हैं इस बजट के, और उसमें स्वास्थ्य क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, और कैंसर, डायबिटीज़, दो ऐसी बीमारी जो मोटे तौर पर आज दुनिया के लिए चुनौती बनी हुई हैं। भारत में भी बड़ी संख्या में इससे पीड़ित मरीज हैं, और जाहिर सी बात है कैंसर की दवाएं महंगी होती हैं, जैसा मदन जेड़ा जी ने कहा, और कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क में सरकार ने छूट दी है इस बजट में। 75,000 नई मेडिकल सीटें और 10,000 करोड़ रुपए के बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम के जरिए दवा उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, ताकि आम आदमी को इलाज सस्ता और सुलभ मिल सके। सुनीला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मुद्दे को, क्योंकि बात जब भी स्वास्थ्य सेवाओं की जाती है तो तमाम तरह के सवाल भी उठते हैं, उम्मीदें भी आम आदमी की होती है। इस बजट से आपकी उम्मीदें किस तरह की हैं? क्या इस बजट में खास है जो आम आदमी के लिए लाभदायक होगा? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि ये जो बजट है कई सालों के बाद विकसित भारत 2047 की तरफ इशारा करता है। यानी कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे बच्चे से लेके बड़े तक स्वस्थ रहेंगे, जैसा कि मदन जी ने भी इशारा किया कि इस बजट में हमारी लगभग, मैं कहना चाहूंगी, टर्शरी केयर प्रोग्राम यानी कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर्स, इनके लिए 66.1% का इंक्रीज है। टोटल अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का 9.4% का बढ़ावा हुआ है,
और हमारी उसमें देखा जाए तो कोई भी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास में जगह हो, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद रहे। और सबसे ज़्यादा हम देखेंगे जितना हेल्थ डिपार्टमेंट को बजट हुआ है उसमें से लगभग 71% जो है वो पीएम अभीम की स्कीम की तरफ जाता है। सो ये दो जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं ये बहुत इशारा करती हैं कि हमें हमारे स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छी तरीके से और सही माध्यम से पहुंचाना है। और केवल हम एलोपैथी की बात नहीं कर रहे, इसमें हम आयुष की भी बात कर रहे हैं और साथ में हम रिसर्च की भी बात कर रहे हैं। यानी कि अगर हम बढ़ेंगे तो साथ साथ रिसर्च का होना, यानी कि शोध कार्यक्रम का होना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। तो हम देखेंगे कि इसमें जो मुनाफा किया गया है आयुर्वेद का और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का बढ़ावा जो है 10.42% हुआ है और साथ में इसमें रिसर्च का जो है 14.62% हुआ है और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की संख्या ऑलरेडी हम बता चुके हैं। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे भारत एक इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पर मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, लोग समझते हैं यहाँ पे सकुशल डॉक्टर उपलब्ध हैं, पैरामेडिक्स उपलब्ध हैं यहाँ आके और खर्चा भी कम पड़ता है। तो इसमें जो हम इकोसिस्टम हमारा जो है इसमें अब ना कि हम केवल 1.5 लाख केयर गिवर्स को बढ़ा रहे हैं जिसमें कि हमारे ओल्ड एज को केयर करने वाले या फिर अलग अलग बीमारियों को केयर करने वाले लोग हैं, वो तो होंगे ही होंगे, परंतु हमारी आयुष का सिस्टम, एलोपैथिक सिस्टम सब मिलके मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा करेगा। तो हम खाली अपने देश की स्वदेश की बात नहीं कर रहे, परंतु हम ग्लोबल लेवल पे भी इस बात की जरूर हम ये कहेंगे कि हमारा जो बजट है ये पूरा इस तरीके से इशारा करता है कि भारत सक्षम है अपनी देखभाल करने के लिए और दुनिया की देखभाल करने के लिए। जी, जाहिर तौर पर विकसित भारत को ध्यान में रखते हुए बजट में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का ऐलान किया गया है। आम आदमी को भी राहत दी गई है और दीर्घकालिक योजनाओं के साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कैसे मजबूत हो, इस पे सरकार का फोकस है। मदन जेड़ा जी, बायो फार्मा शक्ति योजना का खास तौर पर जिक्र किया गया है। स्वास्थ्य संबंधी बजट में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, निवेश किया जाएगा इसमें ताकि जो आयात पर निर्भरता है वो कम हो सके। बायो फार्मा जो क्षेत्र है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें मोटे तौर पर दो बातें, जैसे मैंने कहा कि अब पहले जो हम जेनरिक दवाएं बनाते हैं उसको पेटेंट नहीं होता है उस दवा का, तो उसको कोई भी बना सकता है। लेकिन आज जो नई रिसर्च हो रही है, जो वेस्ट में रिसर्च हो रही है, तो वो दवा पेटेंटेड होती है और वो पेटेंटेड जब दवा होती है तो उसका हम भारत में निर्माण नहीं कर सकते जब तक उसका पेटेंट खत्म न हो जाए। तो इस चुनौती का मुकाबला कैसे किया जाए, क्योंकि जब बाहर दवा बनती है तो एक एक दवा हज़ारों रुपये की, लाखों रुपये की होती है। तो उसका मुकाबला करने के लिए एक तो यह है कि थोड़ा बहुत हम राहत, टैक्स वैक्स में छूट दे के दे सकते हैं, लेकिन उससे मामूली राहत मिलती है। तो राहत तब मिलेगी जब हम अपनी दवाएं खोजें, बीमारियों का अपना इलाज हम ढूंढें। कैंसर का अगर आज इलाज ढूंढना है तो हमें कैंसर की अपनी दवाएं विकसित करनी होंगी। इसी प्रकार हमें कोई और दूसरी बीमारियां हैं, जैसे मैंने बताया कि रेयर डिजीज़ बहुत बढ़ रही है, रेयर डिजीज़ की दवाएं बहुत महंगी हैं, तो उसकी दवाएं हमें खुद विकसित करनी होंगी, खुद रिसर्च करना होगा, खुद उसके क्लिनिकल ट्रायल करने होंगे और खुद बाकी उसके जो आगे की प्रक्रियाएं हैं वो पूरी करनी होंगी। तो वो प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए ही ये जैव शक्ति मिशन लाया गया है। तो मुझे लगता है कि अगर इस पर काम होगा तो अगले 5 से 10 सालों में भारत कई नए मॉलिक्यूल ढूंढ पाएगा और उनके जो परीक्षण है वो बेहतर तरीके से भारत में हो सकेंगे। इसके अलावा इसमें शायद एक कंपोनेंट ये भी रखा जा रहा है कि जो बाहर की जो मेडिसिन है, अगर हम उनका क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पर इंडिया में शुरू करेंगे तो उनको इंडिया में लॉन्च करने में भी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएंगी, हमें उनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर वो कोई दवा अमेरिका में लॉन्च हो रही है, उसका ट्रायल अगर इंडिया में भी हो रहा है तो साथ के साथ वो इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगी। और जब इंडिया में लॉन्च होगी, कोई कंपनी इंडिया में दवा बनाएगी तो उसकी कॉस्ट अमेरिका की तुलना में बहुत कम रहेगी। तो दोनों तरफ फायदा है, हम अपना रिसर्च भी बढ़ाएंगे और जो बाहर की जो रिसर्च है उनको भी अगर हम यहाँ प्रमोट करेंगे तो उसका भी एक फ़ायदा हमें मिलेगा। जैसे हमें मैन्युफैक्चरिंग में मिलता है, कोई चीज़ इंडिया में बनती है तो सस्ती होती है, अगर कोई चीज़ बाहर से बना के लाते हैं तो महंगी होती है। और साथ में उसके जो दूसरे फायदे हैं जैसे रोजगार क्रिएशन और बाकी जो फायदे हैं वो तो है ही हैं। जी, जाहिर सी बात है, अच्छी और सस्ती दवाएं आम आदमी को मिले सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन मेडिकल शिक्षा का जो विस्तार का प्रावधान बजट में किया गया है वो भी एक दीर्घकालिक योजना के तहत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा मैडम, क्योंकि जब भी बात मेडिकल शिक्षा की जाती है, सीटों का सवाल उठता है कि डॉक्टरों की जो परीक्षा संबंधी व्यवस्था है उसमें सीटों का प्रश्न हमेशा उठता रहा है। इस सरकार ने पिछले 1 दशक में लगातार सीटों की बढ़ोतरी की गई है,
आप कैसे देखती हैं इस मुद्दे को? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि आज हम ये कोशिश करते हैं कि हर एक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ उसकी अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि नर्सिंग कॉलेज वगैरह भी साथ साथ होना चाहिए। तो हम केवल क्वांटिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन या मेडिकल शिक्षा की बात नहीं करते, बल्कि क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन की भी बात करते हैं। तो इस दिशा में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि काफी एम्स जो है, 27 से ऊपर एम्स हमारे खोले गए हैं, और इसको भी और स्ट्रॉन्ग करने के लिए बजट में ओवरऑल जो बजट का प्रावधान है उसमें लगभग 7.46% बजट जो है ये टर्शरी इंस्टीट्यूशंस के विकास के लिए दिया गया, ताकि आम आदमी को बहुत दूर तक ना जाना पड़े। परंतु इसमें बहुत जरूरी है कि अच्छी शिक्षा होगी तो हम अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो हमारी जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमारी डॉक्टर्स भी आते हैं। केवल वो नहीं आती कि जिस मंजिल से या जिस बिल्डिंग से हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, परंतु ये भी आता है कि कौन प्रोवाइड कर रहा है और उनके पास में दवाइयाँ हैं, इक्विपमेंट हैं। तो ये सारी चीज़ों का भी इस बजट में प्रावधान रखा गया है। तो साथ ही साथ में डॉक्टर तभी सक्षम बनेंगे जब वो रिसर्च की तरफ, शोध की तरफ भी ध्यान देंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च का भी बजट काफी ज्यादा इस बजट में 2026 के बजट में प्रावधान है, लगभग 23.6% टोटल बजट का, और जिसमें कि आईसीएमआर के बजट को भी 27.98% दिए गए हैं। और ओवरऑल हमारी कोशिश यह है कि जब टेक्नोलॉजी अच्छी रहेगी तो हमारे डॉक्टर अच्छी तरह से शिक्षित बनेंगे और वो दूर दराज, यानी कि हम कहते हैं कवरेज टिल लास्ट माइल तक हमारी सर्विसेज प्रोवाइड हो सकेगी। जी सुनीला जी, मदन जेड़ा जी, मेडिकल शिक्षा का मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा रहा है। जो मेडिकल संबंधी परीक्षाएं, उसको लेकर भी सवाल बीते कुछ समय में उठे हैं। मेडिकल में सीटें बढ़े ताकि अच्छे डॉक्टरों का देश को मिल सकें, अच्छे डॉक्टर। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी का एक मुद्दा उभर के सामने आता है। और पिछले एक दशक में अगर ये देखा जाए तो सरकार ने मेडिकल शिक्षा की तरफ खासतौर से ध्यान दिया है। अच्छे कॉलेज खुले मेडिकल के, अच्छे चिकित्सकों का देश में आए, उभर के सामने आए। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेजेस बड़े हैं। भारत में करीब 800 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज में हो चुके हैं, और इतने मेडिकल कॉलेज दुनिया के किसी भी देश में नहीं हैं। और हमारी जो सीटें हैं 1,29,000 सीटें या 1,30,000 के आसपास सीटें हो चुकी हैं, और इतनी सीटें भी कहीं नहीं, किसी भी देश में नहीं है, चाइना में भी नहीं होंगी। तो सीटें बड़ी हैं, मेडिकल कॉलेज बड़े हैं, और स्टूडेंट भी अब डॉक्टर बन के आ रहे हैं। पीजी में भी सीटें बड़ी हैं, ये सब कुछ ठीक है। जो अब चैलेंज है वो ये है कि हमारे पास डॉक्टर पर्याप्त हैं। पहले हम कहते थे हमारे पास डॉक्टर नहीं है, गाँव में नहीं जा रहे हैं, अब डॉक्टर पर्याप्त हैं। हमारी चुनौती है कि कैसे हर क्षेत्र में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित रहे। इसके लिए जो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक एक जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना है, जिसमें ये किया जा रहा है कि जो एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एक मेडिकल कॉलेज में तब्दील करने की बात है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में तब्दील होता है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जैसे ट्रोमा केयर सेंटर खोलने की बात कही गई है, इस बजट में भी कही गई है, और ये भी कहा गया है कि जहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज उतनी मजबूत नहीं है, वहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज को भी मजबूत किया जाएगा। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मजबूत करते हैं, अब हमारे पास डॉक्टरों की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मजबूत करना है, और उस दिशा में भी बजट में कहा गया है कि ट्रोमा सेंटर और इमरजेंसी केयर को हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मजबूत करेंगे। ट्रोमा केयर तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत कम होता है, और ट्रोमा केयर में जो हम जानते हैं कि जो हादसे बहुत होते हैं, हादसे के जो पेशेंट होते हैं उनको देखा जाता है, या कोई सडन कोई और दूसरे दुर्घटनाएं होती हैं उसको पेशेंट को देखा जाता है, या सीरियस पेशेंट को देखा जाता है। तो अगर ये दोनों चीज़ें बेहतर होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर पाते हैं, और डॉक्टरों की तैनाती डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर हर किस्म के मरीज की तैनाती हो पाती है तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। जैसे कुछ साल पहले ही बजट में शुरू किया गया था कि जिला स्तर पर जो किडनी का डायलिसिस होता है उसकी फैसिलिटी शुरू की गई थी, बजट में शुरू की गई थी, और वो योजना अच्छी काम कर रही है। कुछ जगहों पर सरकारी सुविधाएं हैं, कुछ जगहों पर प्राइवेट की मदद ली गई थी। तो कुल मिला के उस स्कीम का एक अच्छा रिजल्ट रहा था। और पिछले बजट में डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कुछ कैंसर केयर यूनिट खोलने की बात कही गई थी, कुछ डिस्ट्रिक्टों में खुली है, कुछ में अभी प्रोसेस चल रहा है। 4-5 साल की वो योजना बनाई गई थी। तो मुझे लगता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कैंसर केयर की फैसिलिटी मिल जाए, डे केयर की फैसिलिटी देने की बात थी और दी जा रही है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे, जो एक मरीज जब कोई बीमारी होती है तो बड़े शहर की तरफ भागता है, उस पर वो कम होगा, और वो कम होगा तो उसका इलाज का खर्च भी बचेगा।
अगर कोई पेशेंट किसी ज़िले से आज दिल्ली आता है तो उसे रहने का भी इंतजाम करना पड़ता है, उसे आने जाने का भी खर्च उठाना पड़ता है, और फिर दिल्ली में भी इतनी भीड़ है कि उसे कब टाइम मिले ना मिले, उसका नुकसान भी होता है, उसकी मजदूरी का, मेहनत मजदूरी का, उसकी जॉब का। तो ऐसे में अगर हम अपनी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को विकेंद्रीकृत कर पाएँ, जिला स्तर पर भी हम अच्छी फैसिलिटी दे पाएँ, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत एक अच्छी स्थिति होगी। और अब डॉक्टरों की कमी कम से कम देश में नहीं है। जी, जाहिर सी बात है, जिला अस्पताल अगर बेहतर ढंग से काम करेंगे तो मरीज को अपने ज़िलों में ही अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी, और इस बजट में इस बात पर खासा फोकस किया गया है। सुनीला जी, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, जामनगर में WHO का केंद्र स्थापित किया जाएगा। WHO का केंद्र स्थापित होने से किस तरह का अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, किस तरह से देश को फायदा होगा? देखिए, आज हम एलोपैथी की बात ही नहीं करते, हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन की, जो कि केवल हमारे देश में नहीं बल्कि विश्व भर में प्रचलित हो चुकी हैं। तो इसके लिए जामनगर में स्पेशल प्रावधान किया गया है इस बजट में। तो WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर जो है हमारा जामनगर में बन रहा है, परंतु केवल एक नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, बेसिकली मेडिकल वैल्यू टूरिज्म में भी आयुष का जो मैंने पहले जिक्र किया था वो है, और 3 हमारे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष बन रहे हैं। तो इसकी वजह से हम बेसिकली हमारे प्रधानमंत्री की शुरू से इच्छा रही है, प्रधानमंत्री जी की, कि हम एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ हम आयुर्वेदिक में आयुष को भी साथ साथ ध्यान दें, क्योंकि ये प्रूवन फैक्ट है कि हर जगह हमारी मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन काम नहीं करता, परंतु ये हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, हमारी पुरानी पद्धति जो चली आ रही है, तो आयुष को भी काफी प्रावधान दिया गया है। तो इस मामले में भी हमने रिसर्च के लिए, जैसे कि मैंने कहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के लिए भी काफी फंड का इजाफा किया गया है इसमें, और स्पेशली CCRAS जो आयुर्वेद का सेंटर है, जो कि शोध में बहुत तरीके से इन्वॉल्व है, उसको भी 14.62% का बजट किया गया है, जितने भी सारे हैं हमारा टोटल बजट है। तो ओवरऑल जो है हम इसकी तरफ प्रावधान कर रहे हैं, और जब हमारी अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन होंगी और अपना ही वो होगा, तो नेचुरली है कि विश्व भर में हम अपना एक अलग से स्थान बना पाएंगे, क्योंकि ये स्पेशल पद्धति, जैसे योगा में भारत ने विश्व भर में अपना नाम कमाया, तो इसी तरीके से हम इन्हीं मेडिसिन की सहायता से, इन्हीं दवाओं की सहायता से हम विश्व भर में अपना नाम बना पाएंगे। जी, जाहिर सी बात है, सरकार आयुष के जरिए यानी भारतीय चिकित्सा पद्धति को भी खासा बढ़ावा दे रही है लगातार, और इस बजट में भी आयुर्वेद को लेकर, अनुसंधान को लेकर खासा फोकस किया गया है। मदन जेड़ा जी, बात मेडिकल टूरिज्म की करते हैं, क्योंकि इस बजट में भारत मेडिकल टूरिज्म का हब बने, इस पर जोर दिया गया है। मेडिकल टूरिज्म से किस प्रकार का लाभ भारत को होगा और भारत के लोगों का होगा, विश्व को किस तरह से लाभ होगा? देखिए, इसमें 2 बातें, जैसे मैंने भी बताया कि हमारे देश में डॉक्टर बहुत तैयार हो रहे हैं, डॉक्टरों की सीटें बहुत बढ़ गई। तो एक समय डॉक्टर जब ज़्यादा हैं तो हॉस्पिटल ज़्यादा खुलेंगे, हॉस्पिटल अगर ज़्यादा खुलेंगे तो वहाँ पर उनके जो मरीजों को ट्रीटमेंट करने की सुविधा है वो बढ़ जाएगी। अब उसमें एक तो जो हमारे देश के नागरिक हैं वो ट्रीटमेंट कराएंगे, वो इलाज कराएंगे। दूसरी बात, अगर जब लोगों को ये पता चल रहा है धीरे धीरे, और काफ़ी लोगों को पता चल भी चुका है कि भारत में इलाज अच्छा होता है और सस्ता भी होता है। अगर आज अमेरिका, यूरोप से भी इलाज के लिए, हार्ट की सर्जरी के लिए भारत में आते हैं, जहां 2 लाख में हार्ट की सर्जरी भारत में हो जाती है, वही वो सर्जरी अगर आप अमेरिका में देखें तो उसका 20 लाख 25 लाख की कॉस्ट आती है। तो इतने पैसे में वो भारत में घूम भी लेता है और अपना इलाज भी करा लेता है, 1 महीना आराम भी कर सकता है। तो ऐसे में इससे निश्चित रूप से इससे मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा। बजट में भी कहा गया कि 5 मेडिकल टूरिज्म के हब बनाए जाएंगे, और अभी भी जहाँ पर अगर हम दिल्ली NCR में देखें, जितने भी यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, बड़ी संख्या में उनके पास एशियाई देशों से, अफ्रीकी देशों से और थोड़े बहुत यूरोपीय देशों से और अमेरिकन देशों से भी पेशेंट आ रहे हैं और इलाज करा रहे हैं। और जो मेडिकल टूरिज्म के आंकड़े कुछ समय पहले जारी हुए थे, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लोग मेडिकल टूरिज्म का वीज़ा लेकर भारत आए थे। तो कई देश तो भारत पर निर्भर हैं, जैसे बांग्लादेश का मैंने जिक्र किया, तो बांग्लादेश जो है एक उच्च स्तरीय इलाज के मामले में पूरी तरह से भारत पर निर्भर है, और सबसे ज़्यादा लोग बांग्लादेश से आए थे भारत में। आज भारत बांग्लादेश के संबंध में थोड़ा तल्खी है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग बांग्लादेश से भारत में मेडिकल टूरिज्म के लिए, इलाज के लिए आए थे। तो इससे मेडिकल टूरिज्म से जहाँ हमारे हॉस्पिटल इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, हॉस्पिटल क्षेत्र आगे बढ़ेगा, वहीं जब टूरिस्ट आता है तो उससे जो इनडायरेक्ट रोजगार उपलब्ध होता है, चाहे वो फ्लाइट से आए, चाहे फिर किसी होटल में रुके, चाहे किसी धर्मशाला में रुके या गेस्ट हाउस में रुके, उससे जो इनडायरेक्ट रोजगार
होता है वो भी बढ़ेगा। और फिर जो इलाज के लिए आ रहा है तो निश्चित रूप से अगर वो दिल्ली में इलाज के लिए आ रहा है तो आगरे का ताजमहल देखना भी वो नहीं भूलेगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर मेडिकल टूरिज्म से देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा और चिकित्सा सुविधाओं का भी विस्तार होगा, उसको भी बढ़ावा सरकार दे रही है इस बजट के जरिए। सुनीला गर्ग जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है आयुष्मान योजना को लेकर। इस मुद्दे को आप कैसे देखती हैं, क्योंकि लगातार सरकार इसको प्रमोट कर रही है ताकि हर वर्ग को 60 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको बेहतर और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब तक आयुष्मान हमारी योजना नहीं होगी, हम लास्ट माइल तक नहीं पहुंच पाएंगे। पहले आप सबको ख्याल होगा कि हमारे पास में सब सेंटर होते थे, यानी कि 5000 की पॉपुलेशन पर हमारा एक सब सेंटर होता था। अब हम उसको बोलते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, यानी कि सब सेंटर्स और जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है उनको हमने कन्वर्ट करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया है। और जो छोटी पॉपुलेशन के लिए, यानी कि 5000 की पॉपुलेशन के लिए अगर हम बात करें तो वहां पे एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है। तो यानी कि हम आखिरी मील तक पहुंच चुके हैं। परंतु ये है कि क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और अभी गेड़ा जी ने भी जिक्र किया था कि बेसिकली हम हर डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से, जिले के माध्यम से हम आखिरी छोर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आयुष्मान आरोग्य योजना इस डायरेक्शन में या इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है ताकि हम यूनिवर्सल यानी कि सभी को हेल्थ कवरेज प्रदान कर सकें और हम केवल अस्पताल में ही बैठे बैठे ना रहे बल्कि उनके घर तक भी हम पहुंच चुके हैं और हमारी सारी योजनाएं जो हैं उस दिशा में केंद्रित हैं। जी, जाहिर सी बात है, विकसित भारत के लक्ष्य के लिए ये जरूरी है कि देश के हर नागरिक को अच्छी और सस्ती चिकित्सा सुविधाएं मिलें और इस तरह का एक रोड मैप निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में पेश किया है स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर, हेल्थ सेक्टर को लेकर। मदन जेड़ा जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सुनीला गर्ग जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।